بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سامعین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر کسی حد تک اپنی بساط کے مطابق اپنے اختتام تک پہنچائی. آج کے درس میں میں چاہتا ہوں کہ اختصار ہی کے ساتھ آیت الکرسی پر، اس کے حاصل پر ایک نگاہ ڈالی جائے. پہلے میں نے یہ سوچا تھا، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کہ اپنی جانب سے آیت الکرسی کے میں موجود اسباق کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن کی کتاب آیت الکرسی و براہین التوحید کے اخیر میں انہوں نے آیت الکرسی کے ایک ایک جملے کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے، اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے جب آخر کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے اس کا خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کی. میں چاہتا ہوں کہ بس اسی کو آپ حضرات کے سامنے معمولی سی تشریحات کے ساتھ بیان کروں، اس عبارت کو پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کی 12 دلیلیں ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، یہ کلمہ توحید ہوا لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد جتنے بھی جملے ہیں ان کے تعلق سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں توحید کی 12 دلیلیں ہیں جن کے بیان و اس بات پر یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی مشتمل ہے، اور بتاتی ہے کہ اللہ عز و جل ہی الوہیت میں تنہا، یگانہ اور اکیلا مستحق عبادت ہے. یہ صرف بتاتی نہیں ہے، ثابت کرتی ہیں بہت ہی زوردار انداز میں، ناقابل انکار حد تک. اللہ کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لہذا ایک مسلمان کو اس آیت کریمہ کے ساتھ یوں معاملہ کرنا چاہیے کہ رات و دن بار بار تکرار کے ساتھ اس پر غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کے لیے اس کو بار بار پڑھنا ہوگا، تو اس پر بار بار غور و فکر کرے، تأمل و تدبر کی نگاہ ڈالے. اس میں بیان کردہ اخلاص و توحید کو حقیقت کا روپ دے. جو چیز اس آیت کی کریمہ میں اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و کبریائی کی بیان کی گئی ہے، اپنی زندگی میں اس کے اثرات کو دکھائے، اپنے عمل میں اس کے نتائج کو برتے، اس کو حقیقت کا روپ دے. اللہ کے ساتھ شریک و ہمسر بنانے سے اپنے دامن کو صاف اور بے داغ رکھے. اپنے رب کے لیے اسماء حسنہ اور اوصاف عظیمہ، اسماء حسنہ اور اوصاف عظیمہ، اس کا ترجمہ ہوگا بہترین ناموں اور عظیم صفتوں کا اس بات کرے. قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام اور صفات آئی ہیں اس کو مانے، اس کا انکار نہ کرے، ان کی تشبیہ اور تمثیل بھی بیان نہ کرے. گمراہ فرقوں کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ نہ کرے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ نے اختیار کیا، اسماء و صفات کے بارے میں ایمان کا وہی طریقہ اختیار کرے. اس سے ادھر ادھر ہونا گمراہی ہے. اس آیت یعنی آیت الکرسی میں اللہ عز و جل کے 5 اسماء حسنہ ہیں. اللہ عز و جل کے 5 اسماء حسنہ ہیں اور 20 سے زائد صفات ہیں. 5 اسماء حسنہ کون سے ہیں؟ اللہ تو اس کا اسم ذات ہی ہے، الحی القیوم. الحی القیوم، اور پھر اخیر میں اللہ نام ہے، اللہ کا ایک اللہ نام اسم ذات، پھر الحی القیوم اور اخیر میں العلی العظیم. اس طرح 5 نام ہیں. 20 سے زائد صفات ہیں. اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں. وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سارے آسمان اور زمین کی مالکیت وہی رکھتا ہے. سب پر قوت و قہر کا غلبہ اس کو حاصل ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 20 سے زائد صفات ہے. اور میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے 10 کمال کا ذکر ہے. کمال عظمت، کمال حی، کمال حیات، کمال قیومیت،
ہاں کمال قدرت، ہاں 10 کمالات ہیں جو رب کے کمال و عظمت، جلال و جمال اور کبریائی اور بڑائی پر دلالت کرتی ہیں، جس کے آگے سب کے سر کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظمت کہ کائنات کی تمام ہستیاں، تمام موجودات اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور جھکنے پر مجبور ہے۔ طوعاً یا کرہاً انہیں اللہ کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی کوئی حیثیت اور اوقات اللہ کے سامنے نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور جس کے سامنے سب کی آوازیں خاموش ہوں گی، ساری آوازیں، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع له الا همسا، سورۃ طٰہٰ میں کہا ساری آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پست ہوں گی، لوگوں کے دل اس کی خشیت سے دہل جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ تو ایمان والوں کی بات ہے، جو بھی اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ فرشتے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دہشت زدہ رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی وحی کرنا چاہتا ہے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا اور تمام لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے ذلت و عاجزی کی تصویر بن کر جھک جاتی ہیں، تمام لوگوں کی، تمام مخلوق کی گردنیں۔ بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات، ہاں تبارک اللہ رب العالمین۔ وقل الحمد للہ، ہاں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت دیکھیے کہ تمام آپ کہیے الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کائنات ہستی میں، پورے ملک اور سلطنت میں کوئی اس کا شریک اور ساجی، پارٹنر نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور ذلت یا کمزوری لاحق ہو، اس میں اللہ کا مددگار یا دوست بنے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بیان کرنا یعنی اچھی طریقے سے، تو کبیر و تکبیرہ کی تشریح یا تفسیر لوگوں نے کی اے عظیم ہو تعظیمہ، اللہ کو ویسے عظیم اور کبیر مانو، بڑا مانو جیسا کہ حق ہے۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کا مطلب کیا ہے، تعظیم کا مطلب کیا ہے، کبیر و تکبیرہ کی تشریح کرتے ہوئے کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا مان رہے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی تابعداری کریں، اس کے دین کو، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، تبھی تو آپ بڑا مان رہے ہیں، ورنہ بڑا ماننے کا مطلب کیا ہوا، اکبر کہنے کا مطلب کیا ہوا، عظیم ماننے کا مطلب کیا ہوا۔ آگے کہتے ہیں شیخ عبدالرزاق کہ اس آیت کے تدبر میں دنیا و آخرت کے کتنے عظیم فائدے اور کیسی زبردست بھلائیاں ہیں، ہاں کتنے عظیم فائدے اور زبردست بھلائیاں ہیں۔ یہ جملہ پڑھتے ہوئے مجھے شیخ عبدالرزاق ہی کا ایک میں نے حصہ کسی سعودی عرب سے کسی صاحب نے ترجمہ کر کے ڈالا تھا، بڑا ان کی عبارت ڈالی تھی عربی والی، بڑی پیاری تھی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے بھی پیش کر دوں۔ شیخ عبدالرزاق نے بڑی پیارا استدلال کیا، انہوں نے وہ حدیث جو ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو، ایک کتے کو پانی پلایا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کتے کو پانی پلایا، پانی جب اس کے پیاس کی شدت سے اس کی جان جا رہی تھی، اس عورت نے پانی پلایا، پانی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، اس کے پیٹ میں جان چلی گئی۔ ایک کتا معمولی سا جانور ہم کو لگتا ہے، اس کی جان بچانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ عوض دیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کسی انسان کی حاجت پوری کرتا ہے جو مر رہا ہے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اب یہ جسمانی بات ہے، پیٹ کی بات ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے اس کلپ میں بڑی پیاری بات کہی کہ ایک آدمی اگر انسان کو توحید کی غذا دے رہا ہے، توحید سے انسان کے روح زندہ ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات کا جواب دو، ان کی پکار کو سنو، قبول کرو جب وہ تم کو پکاریں، بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول جس کی چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ ہم کو، ہماری روح کو زندگی دینے والی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی انسان کو، خاص طور سے ایسا انسان جو شرک میں ہے، کفر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حقوق کو نہیں جانتا، اگر آپ اس کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں تو سوچئے کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس عورت نے کتے کو جو پانی پلایا، اس کے مقابلے میں آپ کسی کو توحید پلا اور کھلا رہے ہیں، تو یہ بہت عظیم الشان عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے جو انبیاء کرام کرتے تھے، پوری قوموں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے۔
कितना अजीम मर्तबा होगा। हम आयतुल कुर्सी या पैगाम कुरान में जो कुरान की अजमत वाली आयतों और सूरतों की तफसीर पढ़ रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम सही अकीदे को, अल्लाह ताला हमें इखलास देवे और तौफीक देवे कि हम सही अकीदे को लोगों तक पहुंचा सकें। इसकी हर इंसान को दुनिया में और आखिरत में कामयाब होने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। शेख आगे कहते हैं कि यहाँ मैं कहूँगा, आयतुल कुर्सी के तनाजुर में अर्ज कर रहे हैं कि यहाँ मैं कहूँगा कि उन लोगों की अक्लें कहाँ मारी गई हैं जो इस आयत को तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं, इसके मतालिब को समझते हैं, उसके बावजूद कब्रों की ताज़ीम और उन पर उकूफ यानी इत्तिकाफ करते हैं, मुजावर बन के बैठे रहते हैं, हाँ मुजावरी में मुब्तला हैं, उनके पास आजिज़ी और खुशू व खुजू इख्तियार करते हैं। कब्रों के पास जाके आजिज़ी, नियाज और खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, उनके लिए नजर व नियाज पेश करते हैं, कब्रों और मज़ारों पर कुर्बानियों के खून बहाते हैं, हाजतों को तलब करने, मुरादें मांगने के लिए उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और उनकी ऐसी ताज़ीम व तक़दीस करते हैं जो रब्बुस समावात वल अर्ज़ के अलावा किसी और के लिए लायक व जायज़ नहीं है। कुछ लोग कब्रों से ये करते हैं, कुछ लोग जो है बुजुर्गों से करते हैं, कुछ लोग पीरों से करते हैं। हाँ, हाल ये है कि जो कोई कब्रों के पास उनकी हरकतों को देखेगा तो वो उनका मामला अजीब व गरीब पाएगा। आगे शेख ने अल्लामा इब्न क़य्यिम की इग़ासतुल लुहफ़ान से एक लंबी इबारत नकल की कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, फरमाते हैं कि आप कब्रों को ईद बनाने वाले, यहाँ तर्जुमा करते हुए मैंने कौस लगाया है कि ईद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में, और यहाँ अल्लामा इब्न क़य्यिम उसी को इस्तेमाल किया है। तो ईद का माना क्या होता है? त्यौहार हम तर्जुमा करते हैं, त्यौहार कैसे बनता है, ईद कैसे बनती है, लोग इकट्ठा हों, खुशियाँ मनाएं, भीड़ भाड़ हो, इज्तिमा की कैफियत बन जाए, हुजूम हो जाए, तो ये ईद बन गई। तो अब इसमें त्यौहार, मेला और आज के हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो उर्स का नाम जिसको दिया जाता है, उर्स शादी को कहते हैं, ये अहले कुबूर या कुबूरी लोग कहते हैं कि बुजुर्गान दीन जब इंतकाल हुआ तो हदीस में आता है ना कि मोमिन बंदे को फरिश्ते कहते हैं सवाल जवाब के बाद कि नम का नौमतिल अरुस, दुल्हन की तरह सो जाओ। तो जो नेक लोगों में जो मरा है गोया उसकी उस दिन शादी हुई है, तो उस मुनासबत से कहते हैं कि आज इनकी शादी का दिन है, उर्स का दिन। तो उर्स का नाम देकर उनके इंतकाल के दिन उनकी कब्रों पर जमघटा होता है, भीड़ भाड़ होती है, ये मेला बन जाता है, यही ईद है। इकट्ठा हो गया, आपने ईद बना ली उसको, दूर दराज से वहां कसद करके लोग पहुंच रहे हैं। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि आप कब्रों को ईद बनाने वाले गुलू पसंद अफराद को देखेंगे कि वो उन्हें दूर से ही देखकर अपनी सवारियों और चौपायों से उतर जाते हैं कि बुजुर्ग की, उनकी कब्र की इज्जत का तकाजा यह है कि वो दूर से ही उन नीचे उतर जाएं, अब सवारी पे न रहें। उनके लिए अपनी पेशानियां टेकते हैं, जमीन को चूमते हैं, सरों को खोल देते हैं, चीखों पुकार के साथ अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, आहो बुका का यूं मुजाहरा करते हैं कि आप उनकी हिचकियां सुन लेंगे। और वो ये समझते हैं कि नफा और फायदे में उन्होंने हुज्जाज पर बाजी मार ली, जो हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, वो भी इहराम पहन के अपना सर खोलते हैं, हिचकियां बांधते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, वहां जाके हजर असवद को चूमते हैं, तवाफ करते हैं। वो सारे अमल जो हज में होते हैं वो यहाँ मज़ारों और कब्रों पर होते हैं। आगे अल्लामा इब्न क़य्यिम बयान कर रहे हैं, चुनांचे वो उस शख्स से फरियाद करते हैं जिसने न पहली मरतबा पैदा किया ना दोबारा पैदा करेगा। अब कब्र वाले ने इनको पहली मरतबा भी नहीं पैदा किया, दोबारा भी वो पैदा करने वाले नहीं है, अल्लाह ही है। हाँ, और पुकारते हैं लेकिन दूर के मकाम से, उनको दूर के मकाम से पुकार रहे हैं। फिर जब करीब पहुंचते हैं तो कब्र के पास 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और समझते हैं कि उन्होंने ऐसा जबरदस्त अजर सवाब अपने दामन में समेट लिया कि इसके मुकाबिल किबलतैन की तरफ नमाज पढ़ने वाले शख्स का अजर भी कोई हैसियत नहीं रखता। हमने बड़ा ऊंचा अमल कर लिया, हाँ, इतनी मरतबा मैं अजमेर होकर आया हूँ, इतनी मरतबा फलां मज़ार पर जाकर आया हूँ, इतनी मरतबा फलां कब्र और छलावे की मैंने जियारत की है, ये फ़ख्र से बयान करते हैं और समझते हैं कि ये हज पर जाकर आने वाले से भी इन्होंने ज़्यादा अजर व सवाब समेट लिया। हाँ, चुनांचे आप उन्हें कब्र के इर्द गिर्द देखेंगे कि वो रुकू और सजदे कर रहे हैं, मय्यत के फजल व खुशनुदी के तलबगार हैं। जो मर चुका है, जो कब्र में है, उसकी खुशनुदी, उसके फजल के तलबगार बन रहे हैं, जबकि दर हकीकत वो अपनी हथेलियों को महरूमी और नामुरादी और हलाकत व गुमराही से भरते हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कब्र पर आके इनसे दुआ करके इनके लिए माथा टेक कर नेकी का काम कर रहे हैं, कामयाब बन रहे हैं, जबकि हकीकत में वो नामुराद बन रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत दे रहे हैं, अपने हाथ को नामुरादी और नाकामी से भर रहे हैं। चुनांचे यहाँ जो कुछ होता है वो गैरुल्लाह के लिए बल्कि शैतान के लिए होता है।
शिर्क के अड्डों पर जहाँ गैरुल्लाह के लिए पेशानियाँ रगड़ी जा रही हैं, इबादतें की जा रही हैं, वहाँ शैतानी अमल हो रहा है, अल्लाह ताला के खुशनुदी का अमल नहीं हो रहा है। आंसू बहाए जाते हैं, सदाएं बुलंद होती हैं, मय्यत से हाजतें तलब की जाती हैं, मुश्किल कुशाई और रंज मुशक्कत दूर करने का और फाका मस्तों की हाजत रवाई वो तवंगरी का सवाल किया जाता है। हाँ, अब देखिए इस ज़िम्न में अगर हम तफसील में जाएं तो और बहुत सारी बातें हैं। हाँ, इन तसव्वुफ के मारों ने मौसीकी को वो दुफ वगैरह के नाम पर जो है सेमा रक्स और सेमा को जायज़ करा। आज ऐसी बहुत सारी क्लिप आ रही है जिसमें ये दिखाया जाता है कि पीर साहब के सामने उनके मुरीदीन जो है कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। पीर साहब भी जो है जब मस्ती में और हाल में आते हैं तो वो भी मस्त होकर जो है वो कूदते फांदते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इसको रक्स और सेमा का नाम देकर अहले तसव्वुफ जायज़ करार देते हैं, बल्कि ये उनकी इबादत का हिस्सा बन गया जिसका शरीयत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है बल्कि शरीयत के खिलाफ है। आप मज़ारात पे जाएं, वहाँ देखें, हाँ, बाज़ मज़ारात पे मैंने अपनी आंखों से देखा तो वहाँ कव्वालियाँ चलते रहती हैं, उल्टे सीधे कलाम गाए जाते हैं जिसमें कलाम में भी शिर्क होता है। हाँ, बुजुर्ग को, साहिब कब्र को अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला की खुसूसियात और उसके अस्मा व सिफात से मिलाया जाता है और लोग समझते हैं कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं और ये सारे काम किए जाते हैं जो शेख ने बयान किया कि अब इस तरह की हरकतें करके ये तसव्वुर किया जाता है कि ये साहिब कब्र, ये साहिब मज़ार, ये बुजुर्ग हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आप एक मकाम पे जाइए, हाँ, अजमेर जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या हरकतें होती हैं। वहाँ का धागा, हाँ, 10-20 रुपये में धागा खरीद के लोग समझते हैं कि हाथ में गले में बांध लिया, जिसको मना किया गया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, उसको बांध के समझते हैं कि ये बड़ा अजर व सवाब और बरकत का जरिया है। एक दरवाज़ा है कि ये जन्नती दरवाज़ा है, एक देग है, कहते हैं कि इस देग की ये खुसूसियत है और फला मज़ार के फला मकाम की ये खुसूसियत है, वहाँ जो इस तरह से मांग लेवे उसको ये मिल जाएगा, जो ऐसे अमल कर लेवे उसको ये हो जाएगा, जो इतनी मरतबा चला जाए उसको हज का सवाब मिल जाएगा। ये क्या बेबुनियाद फजूल बातें हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक है, उसकी ताज़ीम का मजाक है, उसकी तौहीद की खुली हुई जो है तज़हीक है, इस्तेहज़ा है। और ये सारे लोग कौन कर रहे हैं? जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, वही अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की धज्जियाँ भी कह रहे हैं। किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि यहाँ मसलहत के नाम पर खामोशी इख्तियार की जाए। अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से अच्छा दुनिया में कोई पैदा हुआ है ना होगा। जब उन्होंने तौहीद पेश की तो पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी बस्ती, घर के लोग, हज़रत इब्राहिम से उनके बाप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके ख़ानदान के लोग नाराज़ हो गए। सगा चचा अबू लहब आपके पीछे चलता था, पत्थर मारता था। तो क्या हम अल्लाह के रसूल या उन लोगों से बेहतर हो जाएं? तौहीद पेश करेंगे और किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, ये हमारे रब का हुक्म है कि हम इस दुनिया में अल्लाह की अजमत व बड़ाई का तराना गाएं, लोगों को सुनाएं और ये बताएं कि इस दुनिया में अगर इबादत के लायक, किबरियाई और ताज़ीम के लायक जो अल्लाह है वैसा कोई और नहीं है। उसका जो हक है किसी और का हक नहीं है। अगर कोई इस सच्चाई को ना मानना चाहे और बयान करने वाले से दुश्मनी मोल ले तो ये उस दुश्मनी खुद अल्लाह तबारक व तआला से दुश्मनी है, हमसे नहीं है। जिन लोगों ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम को सताया, किस जुर्म में सताया? हाँ, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ये मोमिन आले फ़िरौन ने ये जुमला कहा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने यही जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा था। वो मोमिन आले इमरान वाला कुरान में है और ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। अल्लाह के रसूल के गले में जब चादर लपेट कर खींची गई, कुफ़ार मक्का के सरदारों ने ऐसा किया तो अबू बकर सिद्दीक़ ने बीच में आड़े आकर उनको हटाया, धक्का दिया और यही जुमला कहा कि क्या तुम एक आदमी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो, मार देना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है? सोचिए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बूतों को तोड़ दिया, हाँ, अल्लाह के डर में। इससे कौम के लोग उनसे खुश हुए थे क्या? नाराज हुए, मीटिंग की, सजा दो, आग में डाल दो, पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है। हाँ, हमारे अंदर क्या ये जुर्रत है? हम अपने मकाम से भी ये बात नहीं कह सकते? हाँ, अच्छी तरह समझ लें कि ये नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है और सारे मुसलमानों पर पहला फर्ज ये है कि वो शिर्क के खिलाफ जंग का ऐलान करें। जितने शिर्क के मकामात हैं दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क में मज़ारात, मशाहिद, जहाँ अल्लाह के सिवा दूसरों को सर टेका जाता है, वो सब अल्लाह शैतानी इबादत के अड्डे हैं और सब अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। सारे के सारे कुरान और हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं, धज्जियाँ भी कह रहे हैं। अगर आपको अल्लाह की अजमत का, उसकी तौहीद का, उसकी इबादत का ख्याल है, ये आयतल कुर्सी सुबह शाम आप पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, तो आपको शर्म आएगी उन मकामात पर जाने में।
डर महसूस होगा अल्लाह ताला से कि हम वहाँ जाएं जहाँ गैरुल्लाह की परस्तिश होती है, कभी भी अजाब आ सकता है। तो कहा कि वहाँ मुश्किल कुशाई, रंज मुशक्कत दूर करने का और फाका मस्तों की हाजत रवाई और तवंगरी का सवाल किया जाता है। आफत ज़दा और मुसीबत के मारों के लिए आफियत मांगी जाती है कि ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, ये गौस हैं, ये फला है, ये ढिमा है। इन या इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम, ये तो बस नाम है जो तुमने, तुम्हारे बाप दादा ने नाम रख दिया, अल्लाह ने इस पर कोई दलील नहीं उतारी। किसकी कब्र में किसका क्या हाल है हम और आप नहीं जानते। किसने बताया कि ये पीर साहब हैं, ये पहुंचे हुए हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं? हाँ, किसने बताया? कब्र के वाकयात को लोग नकल करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी फला की कब्र में गए और ऐसा ऐसा हुआ, कौन रावी है, किसने देखा? ख्वाब दलील नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का तमाम का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। अब आप यहाँ जब आप रिवायत पूछेंगे तो उनके पास बस कश्फ और ख्वाब के अलावा कोई और बहाना नहीं है। आंख बंद की, खोली और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था, लोगों ने ईमान ले आया। कोई सनद की जरूरत नहीं, कोई तहकीक की हाजत नहीं। आप इनकार करेंगे तो गुस्ताख के खाने में डाल दिए जाएंगे। क्या दीन ऐसी बकवास चीज़ है कि कोई कुछ भी दावा करे आप मानने में? इतनी मजबूत बुनियादों पर हमारा दीन कायम है कि दुनिया का कोई सरकश से सरकश और बड़े से बड़ा काफिर भी इसको आसानी से झुटला दे, मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल से भी झुटला कर साबित नहीं कर सकता इनको गलत। हाँ, तो कहा कि इन सब के बाद यहाँ आफत और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए, आफत ज़दा और मुसीबत के मारों के लिए आफियत मांगी जाती है। उन सब के बाद वो पलट कर कब्र के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, जैसे अल्लाह ने काबा के गिर्द तवाफ का हुक्म दिया। ऐसे लोग मज़ारात और मशाहिद का करते हैं, अल्लाह ने कहीं करे ये शीर को होगा दूसरे मकाम पर करना, क्योंकि आप दूसरी जगह कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, तो इन सब के बाद वो पलट कर कब्र के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। और ये तवाफ चूंकि इबादत है तो जिसकी आप तवाफ कर रहे हैं उसकी इबादत कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह इसे यानी कब्र को बैतुल हराम के मुशाबिह बनाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा कि ये कब्र वाले वहाँ तवाफ करके उसको बैतुल्लाह के, काबा के मुशाबिह बना देते हैं, जिसे अल्लाह ने मुबारक और तमाम लोगों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया है, मसाबतन लिन्नास से, है ना। कुरान ने कहा है कि बार बार लौटने की जगह, सवाब की जगह बनाया है। बाद अज़ा बोसा लेने और इस्तिलाम का अमल इख्तियार करते हैं कि कब्र पर उसकी चादर को, कोई जाली को, कोई किसी चीज़ को बोसा लेते हैं, चूमते हैं। हाँ, क्या तुमने हजर अस्वद को और उसके साथ वफूद हरम के अफ़आल को देखा है? अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं, गोया इशारा कर रहे हैं कि जो अमल हरम के अंदर बैतुल्लाह में हजर अस्वद के साथ किया जाता है वो लोग यहाँ मशाहिद व मज़ारात पे करते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुजुर्ग और सहाबी मानते हैं तो उनका वो कौल बुखारी में पढ़े कि हज़रत उमर फारूक ने हजर अस्वद को बोसा देते हुए कहा था कि ऐ पत्थर, ऐ हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है, नफ़ा और नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए नहीं देखा होता तो कभी बोसा नहीं देता। ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल ने किया है, इसलिए हम कर रहे हैं। जो लोग मशाहिद, मज़ारात, फलां जुब्बों, कुब्बों और फलां को चूम रहे हैं, वो बताएंगे कि उमर फारूक, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जो अमल कर रहे हैं हजर अस्वद के साथ किसी और चीज़ के साथ किया, और हजर अस्वद के साथ किया तो क्यों किया? जो उमर फारूक कहते थे वही हम भी कहते हैं, वही हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह के रसूल ने जहाँ बोसा लेने के लिए कहा, जहाँ तवाफ करने की इजाज़त और हुक्म दिया, हम वही करेंगे। अब दुनिया की कोई कितनी भी मुकद्दस और अच्छी जगह आप बयान करें, अल्लाह और रसूल ने जिसको मुकद्दस, जिसको शरीफ, जिसको हुर्मत वाला करार दिया, वही हुर्मत वाला है, वही शरीफ है, वही काबिल बोसा है। आप फला शरीफ और फला शरीफ कहें, हम नहीं मानेंगे। हाँ, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ मानेंगे, इसलिए कि अल्लाह और रसूल ने बताया। हाँ, फिर कब्र के पास पेशानियों और रुखसारों को इस तरह रगड़ा और खाक आलूद किया जाता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत का तर्जुमा है ये कि फिर कब्र के पास पेशानियों और रुखसारों को इस तरह रगड़ा और खाक आलूद किया जाता है कि अल्लाह ताला जानता है, इस तरह से खुद उसके जनाब में किए जाने वाले सजदों में उन्हें खाक आलूद नहीं किया जाता। यानी एक बंदा जब अल्लाह को सजदा करता है ना, तो उस तरह से अपनी पेशानी नहीं रगड़ता जैसे कब्रों मज़ारों पे रगड़ता है। इसके बाद वो बाल तराश कर और सर मूंड कर यहाँ अपने कब्र के हज के मनासिक को पूरा करते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत कितनी प्यारी है। वो इस कब्र के इर्द गिर्द और पास जाकर जो लोग अमल कर रहे हैं ना, उसको कब्र का हज कह रहे हैं। हम बैतुल्लाह का हज करते हैं, अल्लाह और रसूल ने उसका हुक्म दिया, तरीका बताया, अहकाम मसाइल बताया। तो जो वहाँ किया जाता है, ये कब्र की तरफ हज करने वाले लोग
वही अमल कब्रों पर करते हैं। उसका एक जिक्र किया कि आप देखेंगे कि वहाँ कब्रों और मज़ारात पर जाने वाले लोग ये तवाफ और फला काम करके, हो सकता है कोई ये एतराज़ करे कि फला जगह तो ये नहीं करते, फला जगह तो वो नहीं करते। ये मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग अमल किए जाते हैं। तो बाज़ मज़ारात पर बाल भी तराशे जाते हैं। जैसे हज और उम्रा करने के बाद आदमी के हज और उम्रे के अमाल में से एक अमल यह है कि बाल को काटा जाए या हलक करवाया जाए, या उसकी तहलीक या तकसीर की जाए, उसको छोटा करवाया जाए। तो ये अपना बाल तराश कर और सर मूंड कर यहाँ अपने कब्र के हज के मनासिक को पूरा करते हैं और उस बुत से अपना हिस्सा और फ़ायदा हासिल करते हैं। कब्र को ये बुत कह रहे हैं, उस बुत से अपना हिस्सा और फ़ायदा हासिल करते हैं, क्योंकि अल्लाह के पास तो उनका कोई हिस्सा नहीं रह जाता। जब शिर्क कर लिया तो अब अल्लाह ताला के पास कोई अजर सवाब और हिस्सा है ही नहीं। हाँ, इस बुत से मतलब कब्र और मज़ार, इस बुत के लिए वो कुर्बानियाँ पेश करते और चढ़ावे चढ़ाते हैं। उनकी ये नमाजें, ये मनासिक, ये कुर्बानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बजाय दूसरों के लिए होती हैं। अगर तुम उन्हें देखोगे, हाँ, अगर तुम उन्हें देखोगे वो एक दूसरे को तहनियत और मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको खूब अज्र और फजल से नवाजे। और जब वो लौट कर आते हैं कब्र की ज़ियारत करके या अपना कब्र वाला हज करके वे वापस आते हैं, तो पीछे रहने वाले गाली लोग उनसे मुतालबा करते हैं कि उनमें का कोई शख्स अपने कब्र के हज का सवाब बैतुल्लाहुल हराम के हज में पीछे रह जाने वालों से बेच दे। जो लोग हज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये कब्र का जो आप लोग हज करके आए हैं ना, ये हमको दे दीजिए, कुछ पैसा वैसा ले लीजिए और उसका सवाब हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। नेकियां ट्रांसफ़र नहीं होती कि मेरे नामा अमाल से आपके नामा अमाल में या उसके से उसके नामा अमाल में चल जाए। लेकिन इनके यहाँ अहले बिदअत के यहाँ इस किस्म की चीज़ें चलती है कि वो बेच देवे। तो वो जवाबन कहता है कि नहीं, तुम्हारे हर साल के हज बैतुल्लाह के बदले भी मैं नहीं बेच सकता। यानी तुम ऐसे ही मांगो तो पैसे के बदले तो दूर की बात है, तुम अगर अल्लाह के घर का हज करके आओ और मैं मज़ार का हज करके आऊँ, तुम उस हज के बदले में मेरे इस हज का बदला मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। यानी ये ज़्यादा अहम है उसके नज़दीक। ये मामला और हकीकत है, और हमने इसके मुतालिक जो कुछ बयान किया, अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि इसके मुतालिक हमने जो कुछ बयान किया है उसमें कोई ज़्यादती नहीं है, कोई गुलू नहीं है, और ना ही उनकी तमाम बिदअतों और गुमराहियों को समेटा है। ये चंद बातों का जिक्र किया है, ऐसी बिदअत, खुराफात, बदअक़ीदगियाँ और बहुत सारी हैं, क्योंकि वो तो सोच व फिक्र और तसव्वुर व ख्याल से कहीं बढ़कर है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की ये इबारत उनकी किताब इग़ासतुल लहफ़ान से मनक़ूल है। हाँ, आखिर शेख कहते हैं आगे, अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत के बाद आखिरी कलाम कहते हैं कि आखिर इन सरगर्दा और बरगश्ता लोगों की मत कहाँ मारी गई है, इनकी अकल कहाँ चली गई है। अल्लाह रे ताज्जुब कि अपने जैसे बंदों की इबादत व ताज़ीम की तरफ पलट गए और रब्बे अज़ीम की इबादत यानी तौहीद से हट गए। अपने जैसे लोगों की इबादत कर रहे हैं, रब्बे अज़ीम उलू अली अल अज़ीम की इबादत को छोड़ दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। सूरह आराफ की इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह को छोड़ तुम जिनकी इबादत करते हो वो सब तुम्हारी तरह ही अल्लाह के बंदे हैं। सो जिनकी भी इबादत करते हो, ये कुरान का फरमान है, इरशाद है कि अल्लाह के अलावा तुम जिन जिन लोगों की इबादत करते हो वो सारे के सारे तुम्हारी ही तरह अल्लाह के बंदे हैं। सो तुम उनको पुकारो, तब उनको चाहिए कि तुम्हारी मांग पूरी कर दें। अगर तुम सच्चे हो, अल्लाह को छोड़कर उनको पुकार रहे हो ना, तो ठीक है, उनको पुकारो। तुम्हारी पुकार पूरी करते हैं क्या? तुम्हारी बात मानते हैं क्या? देखो यहाँ मुझे वो कौल याद आ रहा है। हाँ, बाज़ उलमा ने नकल किया और कहा कि आजकल के मुसलमान कहलाने वाले कब्र परस्त मुशरिकीन ये कुफ़ार मक्का से बाज़ एतबार से शिर्क में ज़्यादा बढ़कर है। कैसे कि आज आप कुरान में देखिए कि जब कुफ़ार मक्का मुसीबत में पड़ते थे, कश्तियों पर सवार होते थे, तो क्या कहते थे कि बुतों को छोड़ो, अब सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, दीन को खालिस करके। फ़इज़ा रकबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। कुरान ने ये बात कई जगह नकल की कि जब कश्तियों में सवार होते तो अल्लाह के लिए दीन को खालिस करके, मतलब अब किसी और को भी अल्लाह तबारक व तआला के जैसा नहीं मानते थे, पुकारते नहीं थे, सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, दीन को खालिस करके पुकारते। लेकिन आज के मुशरिकीन का मामला क्या है? इज़ा आयतकुमुल उमूर फ़अलैकुम बिअस्हाबिल क़ुबूर। उनके दरमियान ये जुमला चलता है कि जब तुमको मामलात थका देवें, आजिज़ और परेशान हो जाओ जब तुम, तो तुम अस्हाब क़ुबूर को लाजिम पकड़ो।
कुफ्फार मक्का जब आजिज परेशान हो जाते तो कहते सिर्फ अल्लाह को पुकारो। आज जो आजिज परेशान हो जाते, आजिज परेशानी के शिकार होते तो असहाबे कुबूर को पुकारते। यानी कुफ्फार मक्का आम हालात में शिरक करते थे, खास माहौल और परेशानियों में सिर्फ अल्लाह की इबादत या पुकार को इख्तियार करते थे। और आज के मुशरिकीन जो है वो आम हालात हों या मखसूस परेशानियों के हालात हों, हर हाल में शिरक करते हैं। तो कौन ज्यादा बड़ा अल्लाह तबारक व तआला के जनाब में गुस्ताख हुआ, शिरक करने वाला हुआ। तो कहा कि जिन लोगों को तुम पुकारते हो ना वो तुम्हारे ही तरह बंदे हैं। अगर तुम सच्चे हो तो ठीक है, पुकार के जरा अपनी हाजत पूरी करके बताओ कि ये तुम्हारी हाजत पूरी कर सकते हैं। अल्लाह जो चीज नहीं देना चाहता वो दे सकते हैं, दिला सकते हैं। आगे ये कहते हैं कि इस आयत पर अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं सुब्हान अल्लाह अम्मा यसिफून व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह उनके बयान करदा उमूर से पाक है, अपाक और उनके शिर्क से बुलंद बाला है। आखिरी पैराग्राफ में शेख अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि ये जो कुछ हमने इस किताब में जो बातें बयान की, यानी आयतुल कुर्सी की जो तशरीहात की हैं, उसके माना और मतालिब को बयान करने की इख्तिसार के साथ कोशिश की है। हमारी ये सुतूर या ये मारूज़ात ऐसे गुमराह लोगों और उनके अलावा दीगर अफराद के लिए भी इस आयत करीमा में तदब्बुर करने और उसके अजीम मतालिब पर गौर करने की दावत है। यानी हमने जो कुछ बयान किया, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, शेख ने अपनी किताब के लिए कहा कि जो कुछ हमने बयान किया ये आम मुसलमान जो तौहीद वाला है अगर वो भी सुनेगा, समझेगा, गौर व फिक्र करेगा इन मतालिब पर, तो उसकी तौहीद और ईमान इंशाअल्लाह मजबूत होगा, उसके ईमान में इजाफा होगा, अमल में इजाफा और बरकत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। और अगर कोई गुमराह शख्स, शिर्क में मुब्तला शख्स जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की ताज़ीम, उनकी इबादत या अस्मा व सिफात और अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक़ा उमूर के सिलसिले में गुमराहियों का, इनहिराफात का, बिदआत का शिकार है, अगर वो गौर से इन आयात पर, इनके माना और मतालिब पर जो इस किताब में बयान किए गए, जो हमने अपने दुरूस में बयान किया, हमें उम्मीद है कि अगर कोई शख्स इस पर गौर करेगा तो वो ज़रूर सही ईमान और तौहीद को पालेगा। तो ये दावत है कि लोग इस पर गौर करें ताकि इसकी दलालत व बयान के मुताबिक इखलास और तौहीद का इस्बात हो, इसमें कोई कमी और ख़राबी ना रह जाए। यानी आप आयतुल कुर्सी की जो इतनी फजीलत बयान करके अल्लाह ने हमको और रसूल ने कहा है बार बार पढ़ो, क्यों कहा है? ताकि हम इसके माना और मतालिब को अपने जहन नशीन कर लें, सिर्फ ज़बान से ही नहीं बार बार दोहराएं। इसमें गौर व फिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो बातें बयान की हैं, जो हमारी तख्लीक के मकसद से, हमारे दुनिया की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मकसद है, उसको सही ढंग से जानें और उसके तकाज़ों की तकमील करें और हमारी तौहीद में, हमारी ईमान में खराबी न रह जाए। नीज़ आयत में वारिद बराहीन वाज़िहा और दलाइल बय्यिना की रोशनी में शिर्क से बेदारी और मजम्मत का इजहार हो। इसमें जो दलीलें बयान की गई है आयतुल कुर्सी में, अगर बंदा इसको सही ढंग से समझ लेगा तो इसकी बुनियाद पर वो न सिर्फ ये कि अल्लाह की अजमतों की किबरियाई और उसकी तौहीद को अच्छी तरह से इस तरीके से समझ लेगा, बल्कि इसके मुकाबले में जो इसकी जिद है शिर्क और कुफ्र और अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को दूसरों को देना, इन चीज़ों से अपने दामन को बचाएगा, अपने ईमान को इससे साफ सुथरा रखेगा। आखिर में दुआ करते हुए शेख ने कहा, मैं उसी दुआ को दोहराता हूँ कि ऐ अल्लाह तू हमें अपनी हिदायत की तौफीक दे, हमारे अमाल को अपनी रजा के लिए बना दे, हमें कौल व अमल का इखलास अता फरमा। यकीनन तू ही दुआओं का सुनने वाला है, तू ही उम्मीद और रजा के लायक है, हाँ, और तू ही हमारे लिए काफ़ी है और क्या खूब कारसाज है। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।